Hello students. In the last video we have discussed some examples regarding to the area of sector, area of segment. Today also we will see some word problems regarding to area of sector and area of segment. Okay. But while solving the examples regarding to the area of sector and area of segment, you must know the formulas which are related to that. You must know about the basic concepts which are related to sector and segment. Okay, now the example is written in front of you. That example, first of all, let me read, then I will explain what type of example it is, how to solve it. A brooch is made with, listen, a brooch is made with silver wire in the form of circle. A brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 mm. With the diameter 35 mm, the wire is also used in making 5 diameters. The wire is also used in making 5 diameters, which divided the circle into 10 equal sectors. Then find number 1 the total length of silver wire, and number 2 the area of each sector of brooch. The area of each sector of brooch. Okay, I think you well known about this brooch. Okay, this brooch is used generally women are using that brooch for sari purpose. Okay, if maybe you have observed it, look this carefully, then you will come to know that here what happened. Here there is one circular shaped brooch. Its diameter is, I have written here in the figure, I have drawn one figure also for your better understanding. That brooch shape is circular shape, its diameter is 35 mm. Then first of all we have to find out how what amount, yes, what is the length or what is the total length of the silver wire which is used for that brooch. But where that silver wire is used, which that is explained in the example. Silver wire in the form of circle means for circumference of the circle or circumference of the brooch with the diameter 35 mm. And silver wire for what? Look here, the wire is also used in the making 5 diameters. Means look here, where that silver wire is used, that wire, first of all let me tell you, that wire is used for the circumference of the circle, and here you will see 5 diameters are there. Okay, and for those 5 diameters also that wire is used, and we have to think over it, and we have to find out the length of the silver wire. We have to find out the length of the silver wire is nothing but we have to find out the circumference of the circle and length of the 5 diameters. Now here 5 diameters already length is given. Okay, we have to multiply by 5, then we will get length of the 5 diameters. And for finding the circumference of the circular brooch, we have to use the circumference formula, area of circumference formula, or that circumference formula we can use. Instead of, now again one important thing, if you will observe, then you will come to know that here diameter of the circular brooch is given. Means here instead of using radius, means instead of finding radius, directly you can find out the circumference by using what? Direct diameter only. Do you understand? Okay, again one important thing is that the value of pi is also given here. Pi is equal to 22/7. Okay, now look here what to do. First point, first example, what? The total length of the silver wire. First of all let me write solution given. What is given? First of all, see here, the diameter of brooch is 35 mm. The diameter of the brooch is what? 35 mm. That brooch is divided into the 10 equal sectors, and those sectors area also we have to find out the area of each sector. Okay, the diameter of the brooch is what? 35 mm. First of all, we will find out length of the silver wire. Where that wire is used, I told you, for the circumference and for those diameters. Okay, then first point, length of silver wire. The length of silver wire, that is equal to, what will be the formula? Look here, the length of silver wire is equal to circumference of the circle. Okay, circumference of the
circle, or we can say circumference of circle. Okay, what we can say, I was saying circumference of the circle with radius. Suppose you want to find out radius, no problem at all, find out radius. Otherwise you can write circumference of the circle with diameter, okay, with diameter plus what we are going to find out, length of the 5 diameters, plus length of the 5 diameters. Length of the silver wire is equal to circumference of the circle with diameter, that is equal to length of the 5 diameters. Okay, what is the circumference formula? Pi d. Instead of 2 pi r, we are going to use pi d, because already diameter is given. Next, length of the 5 diameter. One diameter is already given. Diameter of the brooch is 35. Then 5 diameters are there, 5 into d. Then 22 upon 7 into d. What is d? 35 plus 5 into 35. Okay. Now look here, 7 ones are 7, 7 5s are. After multiplication, what will get? See, you will come to know that. I will write here. Therefore, that is equal to 22 into 5 plus, look here, 22 into 5 plus 5 into 35. 5 into 35. Okay. Multiply. 25 5s are, sorry, 22 5s are 110. 22 5s are 110. And 5 into 35, 175. Add it, what will get? See, after adding we will get 285 mm. Means what is the length of silver wire which is used in that brooch? 285 mm. Okay. The next question, area of each sector of brooch. We have to find out area of each sector. Okay. Now look here, second question, area of each sector. Okay. Now look here carefully. I will show you figure once again. For what purpose I am showing figure, that I will tell you. If you will observe carefully, then this brooch is nothing but one circle. This brooch is nothing but one circle. And that brooch is divided into how many equal parts? 10 equal parts, or 10 sectors. Look here, 10 equal sectors. Okay. Means suppose we will find out first of all area of circle, and we will divide by 10, then that will be area of each sector. Do you understand? Then that formula we will use here. Area of each sector is equal to 1 upon 10 into area of circle. Area of circle 1 upon 10. Why? Because 10 parts are there. Okay. एरिया ऑफ सर्कल को हम जब 10 से डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा. देन एरिया ऑफ सर्कल मीन्स व्हाट? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10. पाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? 22 upon 7 into r square means 35 square divided by 10. That is equal to 22 upon 7 into 35 divided by 10. Okay, got idea? Now what we will do? 7 ones are 7, 7 5s are. That's why 22 into 5 into 35 divided by 10. Okay, divided by 10. Now we will divide it. 5 ones are 5, 5 2s are. That will be also better for us. Try to understand what I am saying. Okay, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अभी एक बात ध्यान से देखो, इधर एक गलती लिखते वक्त हमारी इधर हो चुकी है. कौन सी गलती? 35. व्हाट इज 35? डायमीटर ऑफ द ब्रूच. मीन्स 35 इज नॉट अ रेडियस. इधर हमें आर स्क्वायर है, तो आर की जगह तो डायमीटर को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करने पड़ेगा. समझे? तो ये जल्दी में ये गलती हो सकती है. तो इधर क्या आएगा?
ओके 5 डिवाइडेड बाई 2, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 35 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर 35 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। फिर से लिखता हूँ, देखो ये स्टेप 22 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 10। अंडरस्टूड? गॉट आइडिया? नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट विल गेट सी हियर, 2 1 जार 2, 2 1 1, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, इधर क्या आएगा 11 आएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके तो 11 इंटू 5, ध्यान से देखो इधर, ओके 11 इंटू 5, अभी इधर लिखता हूँ, देखो 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 10। अभी 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 हो सकता है। ओके तो बाद में क्या आएगा, देखो आंसर 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 11 इंटू 35। अभी इस 2 को डाउन को लेते हैं, तो 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है? 11 इंटू 35, 2 इंटू 2, तो 11 इंटू 35 आंसर आएगा 385 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। समझे क्या आंसर आया? गॉट आइडिया व्हाट आई रोट हियर? 385 डिवाइडेड बाय 4। ओके 385 डिवाइडेड बाय 4। समझने के लिए मैं इधर लिखता हूँ, देखो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल राइट हियर area of each sector is equal to, आंसर कितना आया 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर, क्योंकि वो मिलीमीटर में दिया था। समझ में आया मैंने क्या किया इधर? गॉट आइडिया? किसका किससे मल्टीप्लिकेशन किया है, देखो फिर से दिखा देता हूँ एग्जांपल। इधर देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हम फाइंड आउट करने वाले थे। एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली मैंने 35 रखी थी, बट रेडियस की वैल्यू 35 नहीं है, तो किसकी वैल्यू 35 है? इधर देखो द डायमीटर है 35, तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इधर क्या लिखा है, देखो आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखा है 35 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, बट स्क्वायर यानी कि क्या 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 22/7 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय व्हाट 10। बाद में इधर क्या किया, देखो 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, तो 22 एज इट इज बचे, 5 डिवाइड बाय 2 इधर आएगा और 35 डिवाइड बाय 2 इधर आएगा। सेम स्टेप कॉपी किए, देखो ये स्टेप्स इधर कॉपी करके दिखाया मैंने, 22 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 35 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। अभी इधर क्या किया, देखो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ओके यानी कि कितने आ गए 11, ये 2 चला गया, ओके एक 2 चला गया, तो बचेगा क्या 5 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 एज इट इज रहेंगे। अभी इधर क्या किया, देखो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ओके यानी कि इधर कितने बचे 2 बचे। समझ में आ रहा है? अभी ये जो डिनोमिनेटर है 2 का वो नीचे लिया और ये सारे न्यूमरेटर में लिख दे, ये 5 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो कितना आंसर आया 385 डिवाइडेड बाय 4, ओके 385 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनल आंसर हमको मिला इधर, व्हाट आंसर वी गॉट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर। वाई mm स्क्वायर? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज डायमीटर इज गिवन इन द mm। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा है, देखो इधर, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, रिब्स यानी कि उसके जो, तुमने अम्ब्रेला देखा होगा तो तुम्हें मालूम है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला अगर देखोगे तो उसके जो रिब्स होते हैं वो इक्वली स्पेस में ही होते हैं, ओके अगर अच्छी तरह से देखोगे तो क्या होगा, देखो आगे लिखा है अम्ब्रेला टू बी अ फैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, मैं इधर देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इधर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इधर देखो, अगर तुम अम्ब्रेला देखोगे तो अम्ब्रेला का जो डाउन पोर्शन होता है वो डाउन पोर्शन ऐसा दिखता है,
अम्ब्रेला का डाउन पोर्शन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ओके, यानी कि एक सर्कुलर शेप दिखता है, एक सर्कल ही दिखता है, एक फैट शेप दिखता है उधर। ओके, अदरवाइज वी कैन से अ फैट सर्कल उधर दिखता है। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमें ये सेंटर कंसीडर करना है, और जो आगे अगर अम्ब्रेला तुम ओपन करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इधर तुम्हें दिखा देता हूँ। ओके, ऐसी होती है अम्ब्रेला। और इधर होता है वो सर्कल। अभी ये जो सर्कल है, ये सर्कल मैंने इधर दिखाया है, और इधर से वो रिब्स होती है। समझ में आ रहा है? इधर से क्या होती है, एंड को ही होती है रिब्स। समझ में आ रहा है? इधर से वो रिब्स होती है। ओके, तो ये रिब्स समझो, ये रिब्स है, ये है सेंटर, ये सेंटर इधर दिखाया है। ओके, तो इसका जो रेडियस है, इसकी रेडियस दी है 45 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इसकी रेडियस हमें दी है 45 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दीज कॉन्सेक्टिव रिब्स, यानी कि जो ये जो एरिया है, अभी ये है, ये है, ये जो पार्ट्स बने हैं इधर, सेक्टर्स बने हैं, इसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ओके, एरिया फाइंड आउट करना कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है इधर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो इसका एरिया ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब एरिया ऑफ सेक्टर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला यूज़ करने के बाद, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो एरिया आने वाला है, वो एरिया आने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत है। वो एरिया आने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एंगल की ज़रूरत है। लेकिन एंगल इस एग्जाम्पल में दिया ही नहीं है उन्होंने। फिर से एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखो तुम्हें, तो तुम्हें वो पता चलेगा। देखो इधर, द अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a fat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. समझे? यानी कि इधर एंगल नहीं दिया है, तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर पिछले वीडियो और पिछली बातें तुमने ध्यान से देखी होगी तो तुम्हें समझ में आएगा। ओके, इधर हम एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल मेड बाय टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स एट द सेंटर वी कैन फाइंड इजीली। हाउ वी कैन फाइंड इजीली? लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, फिगर समझने के लिए ड्रॉ किया है, तुम भी ड्रॉ कर सकते हो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सॉल्यूशन गिवन, व्हाट इज गिवन? दिस फिगर इज गिवन। नाउ द एंगल made by the angle, what I am saying, look here, try to understand. Now the angle made by two consecutive ribs, ribs at the center, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इसमें जो एंगल है, अभी इसका जो एंगल है, वो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल 360 को, यानी कि टोटल सर्कल के मेजरमेंट को हम क्या करेंगे, पार्ट्स से डिवाइड करेंगे। पार्ट्स कितने पार्ट्स बने हैं? देखो इधर 8 पार्ट्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा, इधर आंसर आएगा 45 डिग्री, यानी कि ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री। अभी हमें सेंट्रल एंगल मिल गया। ओके, अभी हमें क्या मिल गया, सेंट्रल एंगल मिल गया। तो सेंट्रल एंगल मिलने के बाद हम इजीली इधर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वी गॉट हियर नाउ सेंट्रल एंगल, देन एरिया ऑफ सेक्टर वी कैन फाइंड इजीली। हमें वही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ओके, नाउ एरिया ऑफ, ओके, अभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इधर क्या करना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सर्कल का जो एरिया है, पूरे सर्कल का जो एरिया है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल के एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, पूरे सर्कल के एरिया को हमने क्या किया, किससे डिवाइड किया था, 10 से डिवाइड किया था। क्यों 10 से डिवाइड किया था? क्योंकि ईच पार्ट उतने ही थे। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज करके। ओके, थीटा अपॉन 360 पाई आर, एक एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। ऐसे भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। मैं दोनों तरफ से इधर फाइंड आउट करके तुम्हें दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम एक मैं दिखा देता हूँ इधर, तुम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अभी ये एरिया मिल गया, देखो दोनों तरफ मैं यूज करके दिखा देता हूँ। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना आ गया अभी, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है अगर तुम ये देखोगे तो मैंने बोला पहले 45 स्क्वायर। ओके, अब ये डिवाइड करो, 9 5 जार 9 5 जार एंड 9 4 जार, 9 5 जार 9 4 जार, 5 1 जार 5 8 जार, अब ये आगे का भी लिखेंगे 22/7 इंटू 45 इंटू 45, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो 5 1 जार 5 8 जार 1/8, 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अभी क्या करेंगे देखो इधर, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो 22 45 इंटू 45, इसको डिवाइड करेंगे पहले, 2 4 जार 2 1 जार 2 1 जार, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 45 इंटू 45, 11 इंटू 45 इंटू 45 कितना आता है ये तुम्हें मालूम होगा, अगर 5 एंड में है यूनिट प्लेस पे तो 25, 4 के आगे कौन सा नंबर आता है 5, 20 डिवाइडेड बाय 28, दैट इज इक्वल टू 11 5 जार 55, 5 रिमेन 5, 11 2 जार 22 प्लस 5 7 रिमेन 2, 11 इंटू 0 0 2, 11 इंटू 2 22 2 2 275 डिवाइडेड बाय 28, अगर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 795.53 डॉट डॉट डॉट, और ये आंसर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर है तो हम इधर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे, डू यू अंडरस्टैंड, गॉट आइडिया। ओके, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, पहले एरिया ऑफ सेक्टर इधर हमें लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, सेक्टर, एरिया ऑफ 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 सेक्टर, ओके, और फाइनली हमें मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर, व्हाट वी गॉट हियर 795.53। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो और उसको 8 से डिवाइड करो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर देखो, एरिया ऑफ सर्कल को ही हमने 8 से डिवाइड करने के बाद यही आंसर आता है, तो तुम्हें ये पता चला होगा। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो एरिया ऑफ सर्कल निकालो और उसको 8 से डिवाइड करो, यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ध्यान से एग्जाम्पल देखो, क्या फाइंड आउट करना ये पहले चुनो। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, देखो इधर सेंट्रल एंगल दिए नहीं थे तो पहले हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किए। कैसे फाइंड आउट किए, 360 को 8 से डिवाइड करके, जितने पार्ट्स बनेंगे उतने पार्ट्स को डिवाइड करो। बाद में हमने एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट किया। समझे। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।